نوامی جماعت کا پیچیدہ نصاب سمارٹ سلیبس نے بنا دیا آسان۔ دلچسپ سمارٹ سلیبس طلبہ دوست بن گیا۔ اردو کے 4 اسباق، انگلش کے 3 یونٹ کورس سے حذف، اسلامیات کی 5 احادیث، 7 موضوعات پر سوالات ختم، ریاضی سے بھی 50% سوالات کم، کیمسٹری کے 2 یونٹ 15 ٹاپک، بائیو کا 1 یونٹ 22 ٹاپکس، فزکس کے 27 اور کمپیوٹر سائنس کے 40 ٹاپکس شارٹ کر دیے گئے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں جماعت نیہم کے طلبہ کی سنی گئی۔ پنجاب حکومت نے جماعت نیہم کے مشکل اور طویل سلیبس کو آسان بنانے کے لیے سمارٹ سلیبس جاری کر دیا۔ طویل سلیبس ہونے کے باعث اردو کی کتب کے 4 اسباق جبکہ انگلش کے 3 یونٹ کورس سے نکال دیے گئے۔ اسلامیات کی کتاب سے 5 احادیث اور 7 موضوعات پر سوالات حذف کیے گئے۔ ریاضی کے سلیبس سے بھی 50% تک سوالات کم کر دیے گئے، جس میں مختصر اور معروضی کے سوالات بھی شامل ہیں۔ سمارٹ سلیبس میں سے فزکس کے 27 ٹاپکس نکال دیے گئے، کیمسٹری کے 2 مکمل یونٹ اور 15 ٹاپکس کم کیے گئے ہیں، بیولوجی کا 1 مکمل یونٹ 22 ٹاپکس اور متعدد سوالات کورس سے نکال دیے گئے۔ کمپیوٹر سائنس کا سلیبس طویل ہونے پر 46 ٹاپکس کو حذف کیا گیا۔ سال 2026 کے دوران جماعت نیہم کے امتحانات سمارٹ سلیبس کے مطابق لیے جائیں گے۔ جماعت نیہم کا سلیبس طویل اور مشکل ہونے کی شکایت پر سمارٹ سلیبس جاری کیا گیا ہے۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے فرسٹ ایئر نتائج پر اعتراضات کے انبار لگ گئے۔ اساتذہ اور طلبہ کے بعد پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ گئی، پیپرز کی ری مارکنگ کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل سیکرٹری پرائیویٹ کالج ایسوسی ایشن قاسم بٹر کہتے ہیں اپنے اپنے اداروں کے ٹاپر بچوں کو بھی کیمسٹری سمیت کچھ مضامین میں بہت کم نمبر دیے گئے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے فرسٹ ایئر نتائج پر طلبہ اور اساتذہ کو تحفظات۔ پیپر مارکنگ پر عدم اطمینان پر اساتذہ اور طلبہ کے بعد پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی پیپروں کی ری مارکنگ کا مطالبہ کر دیا۔ ری چیکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپلیکیشن جمع کرواتا ہے، اپلیکیشن جب جمع کرواتا ہے تو اس پیپر کو جو اس نے لکھا ہوتا ہے صحیح وہ کراس کیا ہوتا ہے، تو اس کراس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ بچوں کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ان کے پیپر کی ری چیکنگ کی بجائے ری مارکنگ کی جائے، ان کو دوبارہ ری کاؤنٹنگ نہ کیا جائے۔ جنرل سیکرٹری پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن قاسم بٹر نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہونہار اور اپنے اپنے اداروں کے ٹاپر بچوں کے بھی کیمسٹری سمیت کچھ مضامین میں بہت کم نمبر دیے گئے۔ کیمسٹری میں کم نمبر والے طلبہ کے باقی مضامین میں A گریڈ ہیں۔ حکومت معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پیپروں کی ری مارکنگ کروائے۔ تقریباً 27 پیرنٹ کی اپلیکیشن اس وقت کمشنر آفس میں جا چکی ہیں پیپر کی ری چیکنگ کے حوالے سے۔ ری مارکنگ یا ری چیکنگ کی جائے، پیپر کی ری کاؤنٹنگ نہ کی جائے۔ اگر تمام سبجیکٹ میں اس بچے کا ایشو ہے تو اس رزلٹ کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی بایولوجی فزکس میں A+ لینے والا بچہ جو ہے وہ صرف کیمسٹری میں کیوں فیل ہو رہا ہے؟ پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے تعلیمی بورڈ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جن مضامین کے پیپروں کی مارکنگ میں شکایات سامنے آ رہی ہیں، ان مضامین کے پیپروں کی دوبارہ مارکنگ کروائی جائے۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 یوم کی توسیع۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 روز کی توسیع۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کی۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی۔ 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہو۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر پابندی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں۔ کاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسران اور اہلکار اور عدالتیں پابندی سے مستثنی۔ محکمہ داخلہ کا ہفتہ 1 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری۔ عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی بڑی پیمانے پر تشہیر کی ہدایت۔ صنعتوں کا شہر زہریلی ہواؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 206 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ احمد پور 4 میں اینٹوں کے بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے لگے۔ پیر محل میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی پر ایک بھٹا مسمار کر دیا گیا۔
सनतों का शहर जहरीली हवाओं के शिकंजे में आ गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। छंग और टोबाटेक्सिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पॉइंट्स रिकॉर्ड। चिन्योट की फिजा भी आलूदा होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अहमदपुर सियाल में ईंटों के भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने लगे। शहरियों का कहना है कि जहरीला धुआं फिजाई आलूदगी में इजाफे का सबब बन रहा है। मुतलका इदारों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरी कहते हैं कि सूरत हाल से फिजाई आलूदगी और सांस की बीमारियों का खदशा लाहक। पीर महल में महकमा माहौलियात की टीमें भट्टों की सख्त मॉनिटरिंग करने लगी। जिग-जैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर एक भट्टा मिसमार कर दिया। काम ने भट्टा मालिक को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया। आपको बताएं कि एक्सपोर्ट की कश्ती तंजली के भंवर में फंसकर हज को खाने लगी। बरामद बंदगान ने खतरे की निशानदेही कर दी। सलमान अरशद की क़यादत में एक्सपोर्टर्स के वफ्द की सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख फारूक यूसुफ से मुलाकात। टैरिफ रिफंड्स इश्यूज और सेल्स टैक्स के बारे में दरपेश मसाइल से आगाह किया। कहते हैं मसाइल का सदबाब ना किया गया तो एक्सपोर्ट में बहुत पीछे रह जाएंगे। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट मुसलसल तंजली का शिकार क्यों? एक्सपोर्टर्स ने आने वाले खतरे से आगाह कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सलमान अरशद की क़यादत में एक्सपोर्टर्स के वफ्द की सदर शेख फारूक यूसुफ से मुलाकात। टैरिफ रिफंड्स इश्यूज और सेल्स टैक्स के मसाइल ज़ेरे बहस लाए गए। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, इनवॉइसेज इश्यूज, असेसमेंट वैल्यू समेत दीगर मसाइल बारे भी शिकायत के अंबार लगा दिए गए। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। मसाइल का तदारुक ना किया गया तो एक्सपोर्ट में कहीं पीछे रह जाएंगे। हमने तमाम मामला जो हैं अपने मसाइल जो हैं वो तजावीज़ जो हैं वो फ़रूक साहब के साथ हमने इसको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह ताला हमने ये प्लान किया है कि हम इसको मिलकर इस प्लेटफॉर्म से आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है इसके लिए जो मामलात हैं वो उसको नज़रसानी करेंगे और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद को पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पावर हाउस हम बनाएंगे। सदर एफसीसीआई शेख फारूक यूसुफ का मसाइल को सुनते हुए कहना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए तमाम मसाइल हल कराएंगे। तमाम एक्सपोर्टर्स आज मेरे पास तशरीफ लाए हैं और इन्होंने इनसे बड़ी डिटेल डिस्कस हुई है। तो हम सिर्फ अगर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट रेट का बात करते हैं तो इसके अलावा और बहुत से मसाइल हैं। इनको प्रॉपर रिफंड टाइम पे नहीं मिल रहा। वो 72 आवर्स से 3 मंथ तक चला गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन बन रही है। माहिरीन का कहना था कि मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो एक्सपोर्टर्स को सहूलत देना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। किसानों के लिए रोशन मुआशरत बिजली पैकेज। फेस्को ने रीजन भर में रिलीफ के हकदार इंडस्ट्रियल और ज़रई सारिफिन की लिस्टें तैयार कर लीं। फेस्को में 55,788 इंडस्ट्रियल सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। 54,572 ज़रई सारिफिन रिलीफ लिस्ट में शामिल। सनतकारों का रोशन मुआशरत बिजली पैकेज पर मिला जुला रुझान। फेस्को ने रीजन भर में रिलीफ के हकदार इंडस्ट्रियल और ज़रई सार्फिन की लिस्टें तैयार कर लीं। फेस्को में 55,788 इंडस्ट्रियल सार्फिन को रिलीफ मिलेगा और पावर डिवीजन के मुकर्रर करदा फ्लैट रेट पर अजाफी बिजली फराहम की जाएगी। 54,572 ज़रई सार्फिन को भी फेस्को में रिलीफ मिलेगा। इंडस्ट्रियल सार्फिन की जानिब से रोशन मईशत बिजली पैकेज का खैर मकदम किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को मोहम्मद आमिर का कहना था कि रोशन मईशत बिजली पैकेज सनत और ज़राअत के लिए तरक्की का नया बाब है। फैसलाबाद के सनती और ज़रई सार्फिन के लिए ये पैकेज इंतहाई मुफीद साबित होगा। फेस्को हुकाम का कहना था कि रोशन मईशत बिजली पैकेज के मुकम्मल नफाज के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मालिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रोशन मुआशरत बिजली पैकेज एक्सपोर्टर्स ने खुशाइन करार दे दिया, लेकिन साथ ही इसको सिर्फ इजाफी पैदावार और इजाफी इस्तेमाल से हटाकर मुख्तलिफ फार्मूला तयन करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तकिल ना सही आरजी ही सही। वफाकी हुकूमत का सनतों के लिए इंक्रीमेंटल बेसिस रिलीफ पैकेज। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी रिलीफ पैकेज के तहत सनतों के लिए बिजली फी यूनिट 22 रुपए 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई। रायत सिर्फ अजाफी इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर दी जाएगी जो गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा होंगे। सनतकारों का रिलीफ पैकेज पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर एफसीसीआई शेख फारूक यूसुफ का कहना था कि आरजी बुनियादों पर रिलीफ को देखा जाए तो खुश आइंद है, ताहम इंडस्ट्री को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम अच्छा है लेकिन शरायत इस रिलीफ को मुश्किल बना रही हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे यूनिट्स और बहुत सारे इश्यूज की वजह से अंडर कैपेसिटी हैं, पूरी कैपेसिटी पे चल नहीं रहे। उनकी ठंग में चीनी 179 रुपये फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में 190 रुपये तक बिकने लगी। दही इलाकों में नर्ख 200 रुपये तक पहुँच गए। शोरकोट इंतजामिया भी चीनी की 179 रुपये में फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम।
दुकानदार 195 रुपए में फरोख्त करने लगे। चीनी मिलने के बावजूद कीमतें कंट्रोल में न आ सकी। झंग में चीनी की फी किलो कीमत 179 रुपए मुकर्रर। ओपन मार्केट में चीनी 190 से भी महंगी फरोख्त होने लगी। देही इलाकों में कीमत 195 से 200 के दरमियान पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि बड़े स्टोर्स पर भी मियारी चीनी नहीं मिल रही। गिराव फरोशी के सबब शरीफ परेशान है। भी चीनी 179 रुपए फी किलो फरोख्त करवाने में नाकाम दिखाई देने लगी। शहर भर की दुकानों पर चीनी 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अगर मुताबिक इलाकों की बात की जाए तो वहां पर चीनी 195 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। खरीदारों का कहना था कि किसी दुकान से भी चीनी 190 रुपए से कम में नहीं मिल रही। हुकूमत नोटिस ले और चीनी की कीमत कम कराए ताकि हर शहरी को चीनी बासानी मुयस्सर हो। पिछले हफ्ते हम लेके गए हैं, चीनी तो 178 रुपए मिली है। आज जब हम लेने आए हैं तो 190 रुपए है। हमारी तो हकामे वाला से ही गुजारिश है कि चीनी के रेट्स को कंट्रोल किया जाए। सदर किराना एसोसिएशन चौधरी नादर असलम का कहना था कि चीनी शुगर मिल्स या डीलर से ही जायद कीमतों में फरोख्त हो रही है। महंगे दामों चीनी खरीद कर कम कीमत पर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। उन्हें दुकान के बिजली बिल और मुलाजमों के अखराजात भी तो अदा करने होते हैं। सरकारी रेटों पे माल नहीं मिल रहा, इसीलिए डीलर्स जो हैं वो भी यहाँ पे रेट ज्यादा बढ़ाकर अपना सेल कर रहे हैं। जैसा कि 9200 का गट्टू मिलता है, ये 9200 में लेके नुकसान से तो 5-7 रुपए नहीं ना सेल करेंगे। जाहिर बात है वो 2-3 रुपए, क्योंकि उसके अपने अखराजात भी होते हैं, तो वो 2-3 रुपए बढ़ा कर ही अपना सेल करेंगे। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा इस पे नोटिस लिया जाए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी की कीमतों को डीलर से ही कंट्रोल करवाए ताकि दुकानदार और खरीदारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हुकूमत से मुतालबा करते हुए शहरियों का कहना था कि चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी की जाए ताकि हर शहरी की मुश्किलात कम हो सके। सिंध से आमद शुरू। फैसलाबाद में टमाटरों पर छाई महंगाई के बादलों का रुख बदल गया। चंद रोज कबल 500 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 300 में फरोख्त होने लगे। आढ़तियों ने आइंदा चंद दिनों में कीमत मजीद नीचे आने की नवीद सुना दी। फैसलाबाद की आवाम के लिए खुशखबरी, टमाटरों की कीमतों ने यू टर्न ले लिया। चंद रोज कबल 500 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 300 रुपए तक आ गए। आढ़तियों का कहना था कि टमाटरों की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्का है। चंद रोज कबल 500 रुपए किलो से जायद कीमत में बिकने वाले टमाटर की कीमत आधी हो चुकी है। इनका ये भी कहना था कि सिंध से टमाटर आना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कीमतें कम हो रही हैं। आइंदा दिनों में टमाटर की कीमत में मजीद कमी आएगी। टमाटर की कीमत 600 रुपए थी, आज मंडी में टमाटर की कीमत जो है वो 280 रुपए फी किलो है। आप 300 कह लें चलो, तो मेरा ख्याल है आधी कीमत जो है 600 से 300 रुपए किलो आ गई है। सिंध के टमाटर जो हैं वो मंडियों में आना शुरू हो गए हैं, तो मजीद एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह टमाटर मजीद सस्ते हो जाएंगे। चंद रोज कबल महंगे दामों बिकने वाले टमाटरों की कीमत में नुमाया कमी आने के साथ साथ मजीद कमी के भी इम्कानात रोशन हैं। कैमरामैन राना दरीस के साथ उमर रंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि डिवीजन भर में चिकन कहीं सस्ता तो कहीं महंगा। सनती शहर में ब्रायलर गोश्त 10 रुपए फी किलो बढ़ गया, जबकि चिन्योर टोबा में 12 रुपए कम होकर 437 रुपए फी किलो पर आ गया। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 333 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। फैसलाबाद मार्केट कमेटी ने हफ्ते की रेट लिस्ट जारी कर दी। ब्रायलर गोश्त 10 रुपए महंगा, नई कीमत 437 रुपए फी किलो हो गई, जबकि मार्केट में ब्रायलर गोश्त 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 333 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। आलू कच्चा छिलका 5 रुपए महंगा, 85 रुपए किलो हो गया। मार्केट में 70 से 90 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्याज 5 रुपए महंगा, 95 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 150 रुपए। अदरक चाइना 10 रुपए महंगा, 530 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 550 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन हरनाई साबका कीमत पर बरकरार। मार्केट 300 से 350 रुपए फी किलो। सब्जी 80 रुपए किलो। मार्केट में 130 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। मटर 375 रुपए पर बरकरार। मार्केट में 500 रुपए में दस्तयाब। शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी, 300 रुपए फी किलो। मार्केट में 350 रुपए किलो। भिंडी पूरी की कीमत 140 रुपए, मार्केट में 200 रुपए किलो में दस्तयाब। अरबी की कीमत 85 रुपए, मार्केट में 100 से 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सेब काचा 40 रुपए सस्ता, 260 रुपए, मार्केट में 300 रुपए किलो में बिकने लगा। जापानी फल 10 रुपए महंगा, 180 रुपए, मार्केट में 200 रुपए फी किलो बेचा जाने लगा। अनार कंधारी 20 रुपए महंगा, 270 रुपए किलो हो गया। मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक बेचा जाने लगा। चकोतरा साबका कीमत पर बरकरार 150 रुपए फी किलो। मार्केट में 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब होने लगा। चिन्योट में चिकन की कीमत में 12 रुपए फी किलो की कमी। चिकन 449 रुपए से कम होकर 437 रुपए किलो पर आ गया।
फार्मी अंडे 333 रुपए फी दर्जन हो गए। आलू 75 बाजार में 100 रुपए किलो में मिलने लगा। प्याज 85 रुपए मार्केट में 120 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन चाइना 400, देसी 280 बाजार में 300 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक 620 मार्केट में 700 रुपए फी किलो हो गया। सेब काला कद्दू 290 रुपए मार्केट में 320 रुपए में फरोख्त होने लगा। सेब गाजा 250 रुपए बाजार में 300 रुपए किलो में दस्तयाब। केला 80, मौसमी 110, चिकोतरा 140 रुपए दर्जन मुकर्रर। अनार कंठारी 260 बाजार में 300 रुपए किलो में दस्तयाब। अंगूर गोला 300 रुपए, अंगूर सिंदरखान 500 रुपए किलो मुकर्रर की गई। टोमेटिक सिंह में चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन कर दिया गया। ब्रायलर गोश्त 12 रुपए कमी के बाद 437 रुपए किलो हो गया। बोनलेस गोश्त 650 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे की कीमत 329 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। लहसुन 410 और अदरक की कीमत 630 रुपए किलो हो गई। प्याज 5 रुपए महंगा 95 रुपए मुकर्रर। दुकानदार 120 रुपए फी किलो में बेचने लगे। आलू 5 रुपए महंगा 85 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 100 रुपए किलो तक दस्तयाब। लीमू की कीमत 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। जापानी फल 200 रुपए, मार्केट में 220 रुपए से भी जायद पर फरोख्त हो रहा है। सेब काचा 260 रुपए, अंगूर की कीमत 520 रुपए किलो मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग की सिक्योरिटी गार्ड 3 माह की तनख्वाह से महरूम। घरेलू अखराजात बर्दाश्त करना भारी पड़ने लगा। अस्पताल इंतजामिया के निजी सिक्योरिटी कंपनी को अदायगी के लिए मरासले जिम्मेदारान की कान पर जूं तक न रिंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग के सिक्योरिटी गार्ड्स भी गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। तनख्वाहें न मिलने के बायस सिक्योरिटी गार्ड शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हो गए। घरेलू अखराजात बर्दाश्त न करना मुतासरीन के लिए भारी बोझ बन गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जिम्मेदार निजी सिक्योरिटी कंपनी को 3 बार मरासला भिजवाया गया, ताहम ताहाल तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन न हो सकी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सदफ नकवी के मुताबिक मामला जल्द हल करने के लिए मुतलका हुकाम से दोबारा राब्ता किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुतासरा मुलाजमीन ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। जी रहनुमाओं का कहना था कि मामला इंतहाई संजीदा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर को फौरी नोटिस लेना चाहिए ताकि गार्ड्स की माली मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। वाज़े जनाह मोड़ फैसलाबाद के दोनों तरफ ट्रैफिक सिग्नल एक मरतबा फिर खराब। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। म्यूनसिपल कमेटी तानने वाला शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी में नाकाम। शहरी के मुतादिक शाहराहों पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स जलना भूल गई। अंधेरे के बाद स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, हादसात भी मामूल बन गए। बागी जनाह मोड़ पर दोनों अतराफ के ट्रैफिक सिग्नल एक मरतबा फिर खराब हो गए। एक तरफ लारी अड्डा से बागे जनाह मोड़ जाने वाली ट्रैफिक के लिए नस्ब सिग्नल गैर फाल, तो दूसरी जानब बागे जनाह से मेन रोड की जानब रमा दमा ट्रैफिक के लिए नस्ब सिग्नल भी खराब पड़े हैं। शहरियों का कहना था कि एक तरफ इंतजामिया ई चलान शुरू करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक सिग्नल ठीक नहीं किए जा रहे। इंतजामिया पहले सिग्नल ठीक तो करवाए। जी ये शहारे जो हैं अपना एक कंपनी बाग की तरफ से आते हुए वो भी बंद हैं। जो यहाँ से शहर की तरफ जनाब अपना जनाब चौक की तरफ जा रहे हैं, जनाब क्लब की तरफ, वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से ना वो आए दिन यहाँ पे हादसा होते हैं। काफ़ी शहरियों को काफ़ी मुश्किलात हैं इधर। यही मुतालबा है कि इनको तो पहले ठीक किया जाए, तो फिर ये चलान बनते हैं फिर करें। तानने वाला म्यूनसिपल कमेटी शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। शहर भर की मुतद्दद शराहों पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। कैनाल रोड, गर्ल्स कॉलेज रोड, म्यूनसिपल कमेटी रोड, थाना रोड और कायदे आजम रोड अंधेरे में डूब गए। अंधेरे के बाद स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, सड़कों पर गड़ों में गिरने से हादसात भी मामूल बन गए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से स्ट्रीट लाइट्स की खराबी पर फौरी नोटिस लेने की अपील की है। थाना सिविल लाइन फैसलाबाद के अहलकारों की हड़धर्मी, बिल्डिंग को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। पुराना चिन्योट रोड जंग में सीवरेज लाइन की खुदाई से कारोबार तबाह, शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। थाना सिविल लाइन फैसलाबाद की बिल्डिंग को अहलकारों ने कूड़ा स्टैंड बना लिया। पाइपलाइन की खाली जगह और कूड़े में शराब की खाली बोतलें फेंकी जाने लगी। बिल्डिंग में पाइपलाइन के लिए छोड़ी जाने वाली खाली जगह में भी कूड़ा भर दिया गया। ताफनज़दा माहौल के बायस अहलकारों और साइलिन का बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा। बिल्डिंग के साथ जा बजा बिखरा कूड़ा डेंगू मच्छर को भी दावत देने लगा। जंग में धूल मट्टी और गर्दो गुबार से कारोबार तबाह। पुराना चन्योट रोड पर सीवरेज लाइन के लिए की गई खुदाई मसाइल का बायस बनने लगी। गड्ढे ना भरने से मकीन परेशान, सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। दहाइयां देते मकीनों का कहना था कि गड्ढों के बायस 2 माह से इलाका में ट्रैफिक बंद है। ताजरों और शहरियों का मुतलका हकाम से सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
चनियोट गल्ला मंडी रोड की हालत जार इंतहाई अबतर। मेन गल्ला मंडी सैटेलाइट टाउन रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहने लगा। मुतासरीन का कहना था कि रोड इस कदर खराब है कि इधर से गुजरना मुहाल हो चुका। इंतजामिया रोड की फौरी तामीर व मरम्मत करवाए। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली सुस्त रवि का शिकार। नवंबर 2024 में शुरू होने वाला मरम्मती काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। काम में ताखीर के बायस खेलों की सरगर्मियां मअतल होकर रह गईं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पर काम भी ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। महकमा खेल पंजाब में मंसूबे के लिए 6 करोड़ 50 लाख के फंड मुख्तस किए थे। खिलाड़ियों ने बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। मिंट गुमरे बाजार के ताजरों की जानिब से पार्किंग प्लाजों की तामीर जल्द यकीनी बनाने का मुतालबा। ताजिर कहते हैं पार्किंग प्लाजों की तामीर तक 8 बाजार मोटरसाइकिलों और गाड़ियां उठाने की कार्रवाइयों को रोका जाए। शहर के 8 बाजारों को पार्किंग फ्री तो बनाया गया, मगर पार्किंग की मुस्तकिल तौर पर मुतबादिल जगह ना दी गई। ताजरों की जानिब से 8 बाजारों में पार्किंग प्लाजों की तमीर तक मोटरसाइकिल या गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा कर दिया। ताजिर कहते हैं कि कारोबार इस वक्त शदीद मुतासिर हैं। अगर फैमिलीज खरीदारी के लिए आएं तो पीछे से मोटरसाइकिल या गाड़ी उठा ली जाती है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब तक हमें मुतबादल पार्किंग का निज़ाम नहीं दिया जाता, मुतबादल जगह नहीं दी जाती, उस वक्त तक जो हमारे कस्टमर आते हैं उनकी मोटरसाइकिलें ना उठाई जाएं, क्योंकि कस्टमर बेचारा आता है, उनके साथ उनकी फैमिली होती है। इधर वो सामान लेने अंदर जाता है दुकान से, उधर से मजरा ट्राला आता है, वो उसकी मोटरसाइकिल उठा के जाए। जब तक पार्किंग प्लाजे नहीं बनते, हम 8 बाजारों को जो है ना वो दुकानदारों को रिलीफ दिया जाए। ताजरों की जानिब से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।